So I guess all of you don't know who I am. Until we start, I'll just give a brief explanation or a brief intro of who I am. I am Dr. Himanshu Dubey. I'm practicing with critical care unit in Pune with Ruby Hall Clinics. I've been practicing in Delhi before this. I came to India after my medical education in around 2016. Since then, I have been working in Delhi. Initially, I started with National Heart Institute. After National Heart Institute, I went ahead and when I was with National Heart Institute, I simultaneously moved to RG Stone as well. RG Stone, later on I started my practice with Fortis and then with government in Bara Hindura Hospital with the orthopedics department. So okay, we'll start. What is COVID? Do you have any questions, or anyone can tell me in the comment section below? What is COVID? What do you think COVID is? Anyone? Anyone in the comment section? Do you know what COVID is? So we have Dr. Sonia online as well. So the name COVID-19. COVID-19 stands for coronavirus disease. 19 because it was discovered in the year 19. So COVID-19 is a part of coronavirus group. Coronavirus group is not a new group that we have here in India. As per the assumption that everyone has, COVID virus group is a very old group which we have been treating since a long age, like long ago. COVID-19 is just a particular virus in that whole virus family, and this virus family has changed the particular way in which we look at the disease. It has questioned the way which we look at the medical system, and also a lot of things different. So, and it has also changed the perception, and it has made us aware that the disease which we call as ARDS is perceived wrong in many ways. I've jotted down a few points, I've noted all them here. I'll just take a look accordingly and then I'll start talking about them. So, as they say, one cannot be too cautious or too careful when it comes to disease, because right now, what this disease is doing is it is harming mostly the elder people and the youngsters outside everywhere in the world. But in clinical practice, what we see here in India is we see a lot of youngsters, in fact, who are coming to us as infected. Why is that so? Because in India, what we see is you're not allowing our old people and our children to go out. We have a very big youngster population in the world. It is almost like the mean age all over the world is around 48, and the mean age in India is around 38. So most of the population, around 60 to 70% of the population, or in fact more than that, is below the age of 30. All these people think the virus is not going to affect us as it is propagated in the media. It is going to affect only the older people and the youngsters, right? In the youngsters, as in the children below 15 years of age. So now what I'll tell you is the first young patient I saw dying was 21-year-old with no comorbidities, no diabetes, no hypertension, nothing. And then the second part is we have been hearing a lot about this coronavirus, so it has caused us a caution fatigue. What is caution fatigue? When you keep hearing about something again and again, you start underestimating it. Now that the lockdown has also been over, again the people are thinking the virus has settled down, we can go out. People are going out, people are partying. Recently in the news we saw that in Nagpur, I think around 700 people were infected or quarantined because the person gave out a party when the lockdown was over. That is not what has to be done here. Coronavirus is a virus which will cause you ARDS basically. It is not a virus that is going to cause you other symptoms, like the other viral fevers are also around there. So it is not that every fever, temperature and sort of viral infections are coronavirus. What you need to check out for is, yet you will have the normal symptoms such as fever, cough, breathlessness is something which you should take care of. If you are breathless, you need to go to a hospital. Otherwise, body pain, cold, headache, all these things you can manage at home. You can either call a friend of yours who is working in medical institution, or some doctor you know. You can contact your own personal physician as well. But why breathlessness? Because it is an early sign of pneumonia. Pneumonia is what we are worried of here. In India, that is the major cause why we are having a lot of mortality. Not because of the other comorbidities here. We are also seeing other comorbidities which include the cardiac patients. Yesterday, in fact, we saw a patient who presented with stroke. He was a known case of corona positive virus. He got treated at a hospital. He was discharged. He went back home.
He presented back to us after a week. So yesterday he had to be thrombolized and then we had to do a procedure for him. That is a different case altogether. So how we are going here is, when you are infected, what sort of doctor do you look out for? You don't go to a BHMS or BAMS doctors. They are good, no matter, but they are not trained for this kind of infection. What you need to go for is a chest physician, an intensivist, an infectious disease specialist, right? So all these doctors you are going to mostly find in tertiary care centers, and in most of the cases हमारे छोटे हॉस्पिटल्स में, छोटे शहरों में थोड़ा मुश्किल है मिलना. तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? घर पे रह सकते हैं. इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस. जब भी मोस्टली हमें ये करना है कि घर से बाहर जितना कम निकल सके उतना अच्छा है. लॉकडाउन का हमारा मेन पर्पस वही था. दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ अ लॉकडाउन. लॉकडाउन ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर घूम सकते हैं. और अगर हमें कहीं बाहर भी जाना है और बहुत नेसेसरी है, टू वेयर अ मास्क एट ऑल टाइम्स. आई सी पीपल गोइंग आउटसाइड विदाउट अ मास्क. और अगर मास्क पहना भी हुआ है तो गलत पहना हुआ है. हॉस्पिटल में भी इनफैक्ट पेशेंट्स आते हैं, मास्क उनका नोज़ के नीचे रहता है. डिफीट्स द होल पर्पस, राइट? मास्क हम क्यों पहन रहे हैं? मास्क हम इसलिए नहीं पहन रहे हैं कि हमारी सुरक्षा है उसमें. मास्क हम इसलिए पहन रहे हैं कि बाकियों की सुरक्षा है इसमें. अर्लियर व्हाट वी वर कंसेप्टिंग इज मास्क हमें बचाएगा, एंड हम लोग पहले वी वर एडवाइसिंग अगेंस्ट मास्क बिकॉज हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं थे. जो लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है पेशेंट्स के साथ, वो लोग मास्क यूज़ नहीं कर पा रहे, उनके लिए अवेलेबिलिटी नहीं थी. अब क्या हो गया? नाउ दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ नंबर ऑफ मास्क एंड अवेलेबिलिटी है इतनी, तो एवरी वन शुड यूज़ इट. प्रेफरेबली 95 N95, N99 इज़ द बेस्ट यू थिंक. और अगर वो नहीं है, सिंपल 3-ply मास्क या फिर वॉशेबल मास्क भी पहन सकते हैं. मास्क का मेन पर्पज़ ये है कि अगर आप इन्फेक्टेड हो, आप दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, राइट? इट रिड्यूसेस द ट्रांसमिशन लेवल. और दूसरा चीज़ उसमें यह है कि आपका जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है एंड बाकी चीज़ों से भी आप बचे रहोगे उसमें, राइट? पैनिक नहीं होना है. सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि डोंट पैनिक. इसमें आपको क्या करना है? यू नीड टू हैव अ इन्फॉर्मेशन. पर आपका ये इन्फॉर्मेशन जो है ये व्हाट्सएप इंस्टीट्यूट से नहीं आना चाहिए. इट शुड बी अ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. आइदर चेक इट ऑन सम मेडिकल वेबसाइट्स और विद अ डॉक्टर. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं आना है, विकीपीडिया से नहीं आना है, डॉक्टर गूगल से नहीं पूछना है, ठीक है? बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, डॉक्टर गूगल से पूछ रहे हैं और इन्फेक्टेड आ रहे हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे. हाँ, राइट. एवरी कोल्ड एंड कफ इज़ नॉट कोरोना. नॉर्मल जो अपने फ्लू हैं वो भी आएंगे ही. सीज़न है, मानसून स्टार्ट हो रहा है, नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू रहेगा. बेसिक प्रिकॉशंस सबको लेने हैं. बेसिक प्रिकॉशंस क्या है? वेयर योर मास्क एट ऑल टाइम. हैंड वॉश रेगुलरली करना है. बाहर कहीं पर भी जा रहे हो, हैंड वॉश करना है. देयर इज़ नो एक्सक्यूज़. मार्केट में सैनिटाइजर्स और मास्क अवेलेबल नहीं है, और जहाँ पर अवेलेबल हैं वहाँ पर बहुत हाई कॉस्ट पे मिल रहे हैं. what you can do is you can prepare your own sanitizer. and sanitizer की basically what I feel is इतनी ज़रूरत नहीं है. you can wash your hands at home, you can wash your hands everywhere and frequently करना है बस. sanitizer in fact I see people are not using it properly. लोग यहाँ पर लगाते हैं, ऐसे कर लेते हैं. sanitizer उस तरीके से काम नहीं करता. you have to wash your hands properly, you have to wash it in the 5 steps. WHO ने जिस तरीके से बताया उस तरीके से wash it properly, right? so we'll go to the next point is, लोगों का दूसरा ये भी है, पीपल हैव हाई होप्स कि वैक्सीनेशन आ जाएगा, हम बाहर घूम सकते हैं, वी विल बी सेफ. वैक्सीनेशन आ जाएगा, बट द टाइमलाइन which has been proposed is early 2021. अब ज़रूरी नहीं है early 2021 में भी वैक्सीन आ जाए. इट कैन गेट पोस्टपोन्ड. क्यों? दे माइट बी हार्मफुल इफेक्ट्स. उसकी एफिकेसी के बारे में हमें पता नहीं है, वो कितने दिन चलेगा हमें पता नहीं है. लाइक फ्लू शॉट्स हमें हर साल लेना पड़ता है, हर साल स्ट्रेन्स रिन्यू होते रहते हैं उसके, हर साल हमें स्ट्रेन्स के लिए लेना पड़ता है. देयर आर लॉट ऑफ वैक्सीनेशन ट्रायल्स विच हैव बीन गोइंग अराउंड. इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल में भी एक वैक्सीनेशन ट्रायल चल रहा है, DNA जीनोम BCG वैक्सीन. मैंने भी खुद लगवाया हुआ है, बट देन दैट इज़ अ अदर केस ऑल टुगेदर. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जा रहे हो दोस्तों के साथ बाहर, काफ़ी हो रहा है कि यार वो तो ठीक है, उसे कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो ठीक है, कोई फ्लू सिम्टम्स नहीं है, उसके साथ जाने से क्या ही होगा. देयर आर थिंग्स कॉल्ड प्री सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक एंड सिम्टोमेटिक. WHO ने बीच में गाइडलाइंस रिलीज़ करी थी, बहुत कन्फ्यूजन हुआ था उसके लिए कि एसिम्टोमेटिक पीपल कैन नॉट स्प्रेड वायरस. अब एसिम्टोमेटिक से सारी जनरल पब्लिक क्या समझ रही है? जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है वो वायरस स्प्रेड नहीं करेगा. जनरल टर्म के लिए ठीक है, बाद में WHO ने उसको रेक्टिफाई किया था.
वॉट द कन्फ्यूजन हियर वॉज प्री सिम्टोमेटिक्स एंड एसिम्टोमेटिक्स. एसिम्टोमेटिक है जिसको इन्फेक्शन हुआ होगा बट वो उसको ठीक से मैनेज कर ली है उसकी बॉडी एंड वो उसको और स्प्रेड नहीं करेगा, ना ही उसको होगा. प्री सिम्टोमेटिक इज समवन जिसको इन्फेक्शन हो चुका है, जो इन्फेक्टेड है बट वो उसे भी नहीं पता ही इज़ कैरिंग द डिजीज़. ही इज़ कैरिंग द डिजीज़. वो उसको कुछ दिन बाद उसको सिम्टम्स आना चालू होंगे. एंड ये जो पीरियड होता है दिस इज़ द मोस्ट हार्मफुल पीरियड, क्योंकि वायरल लोड जो होता है, वायरल शेडिंग जो होती है सबसे ज़्यादा इसी पीरियड में होती है. जो अर्ली स्टेजेस है इसमें वायरल शेडिंग सबसे ज़्यादा होती है. सो व्हाट डू यू नीड टू टेक केयर फॉर? जो वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, आपको पता है कि वो आपके घर में नहीं है, वो बाहर से आए हैं, उन लोगों से दूर रहना है. एंड अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो बाहर जाना, आपको घर पे बाहर जाना ही है, तो घर पे आने के बाद आपको भी सबसे सेपरेट रहना है. लाइक इनिशियली व्हेन आई वाज वर्किंग, आई वाज गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड आई वाज लिविंग इन द हॉस्पिटल. मैं 1 महीना घर पे आया ही नहीं अपने. नाउ दैट आई एम कमिंग बैक होम, मैं अपने घर पे भी अलग रह रहा हूँ. मैंने एक अलग से रूम ले रखा है जो सेपरेट है. आई डोंट गो आउट एंड मिंगल विथ माई फैमिली, आई डोंट मिक्स विथ माई फैमिली. किसी को अलाउड नहीं है. मुश्किल है इंडिया में करना बट ठीक है. लाइक इवन माई मॉम, शी गेट्स वेरी इरिटेटेड व्हेन आई एम नॉट मिक्सिंग अप विद द फैमिली, बट इट इज़ ओके. यू हैव टू बी फर्म एंड स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि दिस इज़ बिकॉज you are taking care of everyone else's health. That is a different story which we are going to come back to, of people who are working out and coming back home. That is something which we will talk about when we are working in the COVID sector. Dr. Randeep Guleria, AIIMS के जो डायरेक्टर है, he has convicted or he has released a statement that India में जो पीक है इस वायरस का, that will be somewhere around June end or July. So we are about to enter the peak time where we'll see more number of cases. In fact, every day we are still seeing a number of cases are increasing, skyrocketing. इसमें क्या हो रहा है, पहले जो लोग बोल रहे थे कि टेस्टिंग कम हो रही है, ऐसा नहीं है. टेस्टिंग इज़ इनफैक्ट आई थिंक जो टेस्टिंग कम हो रही है इनफैक्ट बेटर है. बहुत लोगों का उसमें क्वेरी है कि ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, बट आई टेल यू वाई. मॉडलिंग ये जो हम बता रहे हैं कि ये जो पीक आने वाला है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ड्राफ्ट डेमोग्राफिक स्पाइक जो है वो एकदम राइज कर रहा है. मॉडलिंग डेटा है, इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन इनफैक्ट गो लो और गो हाई, डिपेंड्स. और जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें 4.5 to 5% जो है केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं. इनिशियली लोग बोल रहे थे कि टेस्टिंग कम कर रहे हैं, वाई? लोग गवर्नमेंट नंबर्स हाइड करना चाह रही है या फिर कोई और रीज़न है, जैसे चाइना के लिए लोग बोल रहे थे. व्हाट आई थिंक इज़ इंडियन गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन किया एकदम सही टाइम पे किया, एंड वो सेपरेट लोगों को रखा गया इसलिए वो और कम फैला है. इनिशियली क्या होता है कि अगर टेस्टिंग बहुत हाई नंबर्स पे हो रही है, एवरीवन गोज आउट एंड स्टैंड्स इन द क्यू टू गेट टेस्टेड. लाइक व्हाट आई सी, H1N1 जब फैला था हमारे यहाँ पर, H1N1 का टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगी हुई रहती थी. जो इन्फेक्टेड नहीं भी हैं वो उस लाइन में रुक के इन्फेक्ट हो गए काफ़ी लोग, राइट. सो टू प्रिवेंट दैट थिंग, नंबर ऑफ केसेस कंट्रोल में रहे, इसलिए वो टेस्टिंग कम थी. टेस्ट किसको कर रहे थे? जो सिम्टोमेटिक है, जिसका कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है या फिर ट्रैवल हिस्ट्री है. जिसका कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स भी है, तो इट इज़ बेटर यू स्टे होम. वाई? बिकॉज अगर माइल्ड सिम्टम्स भी है एंड इवन इफ़ यू टेस्ट पॉजिटिव, आपका क्या करने वाले हैं? होम क्वारंटीन होने वाला है, राइट. होम क्वारंटीन का हम और कुछ नहीं करने वाले हैं उसके लिए, अगर माइल्ड सिम्टम्स है. 95 to 90% केसेस में होम क्वारंटीन या फिर माइल्ड इंटरवेंशन से काम चल जाएगा. तो ऐसे लोग घर पे रहें, क्योंकि अगर आप टेस्ट करा लिया, पॉजिटिव भी आया, तभी भी उसका कोई चेंज नहीं आने वाला है. जो आपको करना है आपको वही करना है, राइट. ये जो टेस्टिंग है, वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट फॉर अदर 5% ऑफ पीपल? बिकॉज हम उनको जब हॉस्पिटल में ले रहे हैं, ये जो पेशेंट हैं दे आर प्रेजेंटिंग विथ मॉडरेट टू सीवियर कंप्लेंट्स, ARDS के साथ आ रहे हैं. तो उस टाइम पे वी नीड अ कन्फर्म report. Why? To prevent the other healthcare workers from getting infected, and other documentations, legal purposes भी है, and to prove that the patient is a COVID patient. So until and unless we have a proof, हम उस चीज़ पे आगे नहीं जा सकते, right? Then इस टाइम पे what we see is temperature, thermometers के prices बढ़ गए हैं, pulse oximeters के prices बढ़ गए हैं. Everyone keeps calling, do you know where will we get cheap pulse oximeters, where will we get thermometers? ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. थर्मोमीटर हर किसी के यहाँ पर होता है. पल्स ऑक्सीमीटर्स की जनरल पब्लिक को ज़रूरत नहीं है. जो पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर्स 1000-1200 में मिल रहे थे, अब 5,000, 6,000, 6,000 के मिल रहे हैं. दैट इज़ नॉट नीडेड. यू डोंट नीड अ पल्स ऑक्सीमीटर, यू डोंट नीड एनी एडवांस मशीन एट होम. दैट इज़ ओनली फॉर द मेडिकल पर्पसेस. ठीक है. सो
और हम फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या करना था. राइट, यू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर इफ़ यू हैव अनयूजुअल सिम्टम्स. राइट, और आपको कहाँ कहाँ पर जाना अवॉइड करना है. क्लोज स्पेसेस पे यू कैन बी विथ अ लॉट ऑफ पीपल. एलिवेटर्स, लिफ्ट्स में बिल्कुल नहीं जाना है. इफ़ पॉसिबल टेक स्टेयर्स, कीप्स यू हेल्दी एज वेल. एंड सेंट्रल एसी जहाँ पर है, काफ़ी सारे लोग जहाँ पर अवेलेबल है, उन सारी जगहों पर बिल्कुल भी नहीं जाना है. हमारे हॉस्पिटल में भी जैसे हम काम कर रहे हैं, ऑल द सेंट्रल एसीज आर स्टॉप वर्किंग. हम आइसोलेट कर रहे हैं, नेगेटिव प्रेशर रूम्स यूज़ कर रहे हैं, एसी बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं. वी आर वेयरिंग दोज पीपीज इन द हॉस्पिटल विदाउट एसी. इट इज़ डिफिकल्ट बट दैट इज़ वॉट हैज़ टू बी डन. हैव टू कम्प्लीटली अवॉइड एलिवेटर्स. राइट. फिर दूसरी थिंग इज़, जब लोग जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास में, पहले तो आपने बहुत सारी ताली बजाई, एंड फिर उसके बाद आप देख रहे हैं न्यूज़ में डॉक्टर्स के पीछे लोग मारने के लिए भाग रहे हैं. वो सब नहीं चाहिए. लोगों का कॉपरेशन चाहिए बेसिकली. बाकी चीज़ें आपको नहीं करनी है. जैसा आपका डॉक्टर बोल रहा है, जैसा गाइडलाइंस है, जैसे आपको एडवाइस मिल रहे हैं, आपको फॉलो करना है. एडवाइस अगेन नॉट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एडवाइस इज़ अ प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस या फिर गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो है वो आपको फॉलो करने हैं. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो गाइडलाइंस आ रहे हैं, फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, उनको आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है, इग्नोर करना है. I see a lot of people posting about many things which is completely utter bullshit. You don't have to follow those guidelines. और बहुत गलत चीज़ें उसमें फॉरवर्ड हो रही है. उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है. आप अपने डॉक्टर से पूछो, आप अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछो. कुछ नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप उन पे जाके आप चेक करेंगे. राइट. लॉकडाउन वॉज परफेक्टली टाइम. उस चीज़ के लिए भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा. लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, आगरा से मेरे एक भैया है, उन्होंने पोस्ट किया था कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया, जानबूझ के डिले किया, जानबूझ के जल्दी किया. ऐसा नहीं है. इट वॉज परफेक्टली टाइम. इनफैक्ट उस टाइम की वजह से काफ़ी फैलने से बचा हुआ है. देन गोइंग आउट एंड रीओपनिंग थिंग विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ. हम उस फेज़ में हैं, हम रीओपनिंग फेज़ में हैं. दैट शुड बी डन विथ वेरी मच केयर एंड स्ट्रैटेजिकली. बिकॉज अगर ये नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ द सेकेंड वेव इज़ मोर हाई. सेकेंड वेव ज़्यादा लीथल होगा एंड बहुत लीथल होता है. एज वी सॉ इन 1920 में जो स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था, इट स्टेड अप टू 3 years. 3 साल था वो, एंड 3 साल में उसके कई वेव्स आए. जो रिपीट वेव्स आते हैं वो ज़्यादा लीथल होते हैं. व्हाट हैपेंड देयर वाज, लॉकडाउन हुआ, लोग घर में रहे, स्पेनिश फ्लू कम हुआ. लॉकडाउन हटा, लोगों ने सड़कों पर जाके पार्टीज करी, लोगों ने सेलिब्रेट किया कि लॉकडाउन हट गया है. एंड देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम बैक विद दिस डिजीज एंड मिलियंस ऑफ देम डाइड. वो नहीं करना है. ठीक है. रेस्ट्रिक्टिंग गोइंग आउट इज़ गुड. सोशल इंटरेक्शन शुड बी केप्ट टू मिनिमल. सोशल इंटरेक्शन, हम पता है कि हम इंडियंस हैं, हम लोगों से मिले बिना नहीं रह सकते बाकी लोगों जैसे. बट ऑनलाइन रखो, कॉल्स पे रखो. आप किसी को कॉल करके पूछ सकते हो कैसे हो. एवरीवन विल अंडरस्टैंड. पैंडेमिक है, नहीं आ रहे हैं. किसी के यहाँ पर फंक्शन है, बहुत ज़रूरी है तो जाइए, नहीं है ज़रूरी, कोई दूर का है तो आप बस कॉल करके एक बार विश कर सकते हो, बाद में फिर मिल लेना आप. व्हेनेवर ऑल दिस इज़ डन, फिर आप जाके मिल लीजिए. तब आप अपना जो भी है कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है या फिर गले मिलना है वो तब कर लेना. कुछ दिनों के लिए नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है. फिर किसी का कोई क्वेश्चन है अब तक बीच में? इफ़ एनी वन इज़ देयर. हाँ, you guys can write down your questions down here. I'll read and I'll answer all these questions. Okay. Are you suggesting Favipiravir? Okay. So what we are doing here in India, okay, I'll do one thing. I'll come back to it once we start with all the working thing and the guidelines. Can this disease be treated home with proper prescription? Yes, this disease can be treated at home with proper prescription. What we have to do is, because जितने हम पेशेंट्स देख रहे हैं 70 to 80% ऑफ द केसेस आर एसिम्टोमेटिक टू माइल्ड. एसिम्टोमेटिक टू माइल्ड को हमें क्या करना है, हमको घर पे रहना है. घर पे भी आइसोलेशन में रहना है. ऐसा नहीं कि आप घर पे रह रहे हो तो बाकी लोगों के साथ में रह रहे हो. बहुत माइल्ड सिम्टम्स होंगे, दे विल लास्ट अराउंड 5 to 7 days एंड चले जाएंगे. यूजुअली क्या होता है माइल्ड सिम्टम्स में, यू गेट डायरिया, हेडेक, बॉडी एक, सोर थ्रोट होगा. नथिंग टू वरी ऑफ. अगर आपको फीवर है, माइल्ड फीवर रह रहा है, तो नथिंग टू वरी ऑफ. आप अपने डॉक्टर से बात करो, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे. यू टेक केयर ऑफ इट, एवरीथिंग विल बी ओके. इफ़ यू स्टार्ट डेवलपिंग वॉमिटिंग, सिवियर डायरिया, ब्रेथलेसनेस, देन यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल. तब आपको हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से मिलना है, वो आपको एडमिट करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली. राइट. यू हैव टू अवॉइड फियर मॉन्गरिंग, but you have to be socially responsible as well. Keep social distancing.
वेयर योर मास्क एट ऑल टाइम्स, वॉश हैंड्स, एंड फैमिली से भी दूर रहना है. हमारे यहाँ पर इनफैक्ट मेरे घर पे ये हो रहा है कि आई डोंट गो एंड हैव माई डिनर विथ माई फैमिली. व्हेन आई कम बैक होम, मेरा डिनर सेपरेटली मैं अपने एक रूम के पास डोर के पास ले लेता हूँ, एंड आई हैव माई डिनर एंड माई फूड सेपरेटली. Okay, so the next point which I am going to go ahead with, how did it born? What is corona actually? Okay, so AJ is asking how was this virus born and actual coronavirus क्या है. कोरोना वायरस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक फैमिली है. COVID-19 is a virus from that particular family. One second, I think my battery is running low. One second everyone, I'll just add this thing. Okay, so I'm sorry about this thing. So where were we? How working with COVID, right? And किसी और का कुछ क्वेश्चन तो नहीं है इस पे. Yes, another thing which I missed was आरोग्य सेतु ऐप. It is good. आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड करना है. It keeps a track of where you are going. अगर आप किसी से कांटेक्ट में आए हो या नहीं. हम जब कोविड टेस्ट कर रहे हैं, ICMR के हम जब फॉर्म्स भर रहे हैं, इफ़ यू हैव और आरोग्य सेतु ऐप और नॉट इज़ आस्क्ड. वहाँ पर हमको ये मेंशन करना पड़ता है. आपका आधार कार्ड ज़रूर लगता है उसके लिए. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो देन इट बिकम्स अ वेरी लेंथी एंड वेरी लॉन्ग एंड हेस्टी प्रोसीजर. Dr. Harish Kumar is asking what is the recommendation of ICR for pooled RT-PCR. Okay, we'll come back to it थोड़ी देर में. Mohini Bansode, is Arogya Setu app really helpful? Okay, I just said. Is N95 mask washable? No, N95 mask is not washable. In fact उसके filters जैसे ही गीले होते हैं वो ख़राब हो जाता है. N95 mask को हमें किस तरीके से यूज़ करना है. Even at AIIMS and our hospital what we are doing is N95 mask जो है हम 4 मास्क ले रहे हैं. ये यूजिंग 4 मास्क फॉर 20 डेज. अब उसका मतलब ये नहीं कि आप एक मास्क को आप कंटिन्यूस 4 दिन यूज़ करेंगे एंड फिर उसको फेंक देंगे, फिर नेक्स्ट मास्क यूज़ करेंगे. आपको क्या करना है बेसिकली, आपको 4 मास्क यूज़ करने हैं. 4 मास्क और 4 बैग रखने हैं. आपने मास्क 1 को बैग 1 में डालना है, मास्क 2 को बैग 2 में डालना है, मास्क 3 को बैग 3 में डालना है, मास्क 4 को बैग 4 में डालना है. टुडे डे 1 यू यूज़ मास्क 1. मास्क 1 आपने यूज़ किया, आपने ला के उसको बैग में डाल दिया. जो सिपलॉक बैग्स होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हो या फिर रेगुलर प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर सकते हो. बैग 1 में मास्क 1 डालना है. डे 2 आपको मास्क 2 यूज़ करना है. डे 3 आपको मास्क 3 यूज़ करना है. डे 4 आपको मास्क 4 यूज़ करना है. डे 5 अगेन यू कम बैक टू मास्क 1 एंड उसी तरीके से आपको यूज़ करना है फॉर 5 days. यू कैन यूज़ इट फॉर 5 times. यूजुअली नॉट रिकमेंडेड बट इट इज़ अ वेरी कॉस्टली मास्क एंड अवेलेबिलिटी का भी उसका इशू आता है. तो दिस इज़ द प्रॉपर वे विच यू कैन यूज़. दिस इज़ वॉट वी आर रिकमेंडिंग राइट नाउ. ठीक है. और एल्स जो 6 layers मास्क आ रहे हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ गुड. बट फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स हु आर डीलिंग विद कोविड पेशेंट्स डायरेक्ट 1-to-1 उनके लिए ये तरीका बेटर रहेगा. यू कैन यूज़ अ फेस शील्ड एज वेल. फेस शील्ड से ड्रॉपलेट मेथड से आपका इंटरेक्शन कम होगा. सो आई विल कम बैक टू दिस थिंग वर्किंग विद कोविड. बिफोर कोविड व्हाट हैपेंड, people or intensivists what we should say usually preferred people putting people on breathing machines what we call BiPAP or on high nasal flow. या फिर उनको अगर वो सब से मेंटेन नहीं हो रहा है तो हम इंट्यूबेट करते थे पेशेंट्स को. वी पुट इन अ ब्रीदिंग ट्यूब एंड वी इंट्यूबेट. बट इनिशियली व्हाट हैपेंड व्हेन दिस डिजीज केम, वी वर नो लॉन्गर श्योर इफ द यूजुअल क्राइटेरिया is helpful for the ARDS. It was a very tough decision to make. Why?
because on normal days patient will come on normal days when the patient comes, you are not afraid of the aerosol procedure. आप aerosol methods यूज़ करने में आप डरते नहीं हो. यहाँ पर आपको प्रोसीजर्स ऐसे यूज़ करना है, यहाँ पर एरोसॉल मेथड कम से कम हो, एरोसॉल रिलीज कम से कम हो, राइट. सो अर्ली इंटुबेशन भी स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए हम लोगों ने अवॉइड किया था, बट नाउ वी आर यूजिंग अर्ली इंटुबेशन एज वेल. फिर नेक्स्ट पॉइंट वेर आई गो इज ओके. this disease, what happens is I am working with critical care department, right? So every day we see people come and people die, but this is something which we had never seen before, and the patient is sick, the patient is scared, the healthcare worker is scared. Healthcare worker is scared because उसका propaganda इस तरीके से हुआ है कि everyone is scared. इसका मतलब ये नहीं कि this is a very infectious disease and we don't have to take a precaution. Precautions आपको लेने हैं. पहले भी जब हमारे पास डिजीजेस आते थे, वी यूज टू टेक प्रिकॉशंस एंड वी यूज टू वर्क. कोविड से भी बहुत इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं हमारे पास. हम इंडिया में XDR ट्रीट कर रहे हैं, हम MDR ट्रीट कर रहे हैं, हम म्यूकोरमाइकोसिस ट्रीट कर रहे हैं. वी आर टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस. पर उसके लिए तो आप इतना फेयर मॉन्गरिंग नहीं हो रहा है आपका. यू यूज़ योर मास्क, यू यूज़ योर फेशियल शील्ड एंड यू गो देयर, राइट. तो इसको भी उसी तरीके से ट्रीट करना है एंड इससे डरना नहीं है. यहाँ पर दी अदर पॉइंट विच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज, जैसे हम PPE यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर द ह्यूमन टच ऑफ द मेडिकल सिस्टम गोज अवे व्हेन यू गो एंड मीट द पेशेंट. यूजुअली जब हम पेशेंट को मिलते हैं, वो आपका फेस देखते हैं, दे सी योर एक्सप्रेशन, दे सी यू स्माइलिंग, यू टॉक टू देम. उससे क्या है, कनेक्ट बनता है एंड द पेशेंट स्टार्ट्स ट्रस्टिंग यू. इसमें क्या हो रहा है, PPE में द नर्स कम्स, द डॉक्टर कम्स, द क्लीनर कम्स, सब आते हैं, किसी को पता नहीं पड़ता कि कौन क्या है. PPE में आप घूम रहे हो, आप सब एक जैसे लगते हो, किसी को समझ में नहीं आएगा. आप जाओगे पेशेंट के पास, आप पेशेंट से बात करके आओगे, पेशेंट को यही नहीं पता होगा कि उससे कौन आके बात करके चला गया. द ह्यूमन टच हैज़ गॉन. और दिस इज़ अ पेशेंट इन अ क्लोज कन्फाइंड रूम एवरी डे सीइंग समवन कमिंग इन अ PPE एंड गोइंग आउट. देयर इज़ नो ह्यूमन टच. इट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक फॉर अ पेशेंट. सो द बेस्ट थिंग टू अवॉइड कोविड इज़ taking all the precautions, not going outside, using proper mask, so that you don't go through all that. जिन लोगों के लिए ये सब हो रहा है, very sorry about it, but that is how it is to happen, so that the doctor and the staff doesn't get infected, right? So इसके बाद हमारा next point है the treatment strategy. Starting में initially that was a lot of there were a lot of doubts. The crux here was we don't want to intubate a patient if we are not sure he needs an intubation, but as suppose early intubation has been advised. यहाँ पर क्या होता है कि we don't want to intubate a patient where we are not sure he really needs it, because 70% of the cases the patient is not going to make it. And then again we are not sure if we want to delay the intubation, because जिसको ज़रूरत है, the more you delay, the costing of it to the patient is higher, right? The more you delay, patient उससे ज़्यादा सफ़र करेगा. यहाँ पर और क्या हो रहा है, दैट इज़ अ वेरी एस्टॉनिशिंग थिंग विच वी आर सीइंग हियर इन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट. इज पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट आपसे बात कर रहा है, पेशेंट इज़ ब्रेथलेस, पेशेंट इज़ नॉट ट्राउजी, नथिंग, बट उसका जो एफर्ट लेवल है हैज़ रेज्ड अ लॉट. आप पेशेंट को बोलते हो आप बैठ जाओ, सैचुरेशन चेक कर रहे हो. सैचुरेशन इज़ द ऑक्सीजन सैचुरेशन. आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है आप उसको चेक कर रहे हो. यूजुअली ऑक्सीजन लेवल फॉर अ नॉर्मल पर्सन, यू एंड मी, शुड बी मोर देन 95. यूजुअली हम चेक करते हैं तो 97 to 100 के बीच में ही रहता है. जो पेशेंट COPD के हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, या फिर कोई और लंग डिजीज़ है, उनका यूजुअली वी एक्सपेक्ट अराउंड 90 to 93 के आसपास हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स को जब हम बोलते हैं आप स्ट्रेचर पे लेट जाओ, बेड पे लेट जाओ, एंड देन वी चेक द सैचुरेशन, इज़ वेरी अस्टॉनिशिंग एंड ह्यूमनली इम्पॉसिबल until now that we have seen. 60 के नीचे सैचुरेशन जाता है तो वी यूजुअली इंट्यूबेट द पेशेंट. उसके पहले भी हम वी प्रेफर बाईपैप एंड अदर थिंग्स, बट 50s 60s में जा रहा है अगर, वी डायरेक्टली इंट्यूबेट द पेशेंट, वी डोंट वेट फॉर एनी मच लॉन्गर. यहाँ पर पेशेंट आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, कोई एफर्ट नहीं, माइल्ड ब्रेथलेसनेस, यू पुट ऑन द पल्स ऑक्सीमीटर, सैचुरेशन इज़ 45-50, which was very new to everyone in India and abroad, but that is how we have been seeing the patients, which has again led us to a question, is this really ARDS, right? ARDS में there are criterias which we have set up. हमको उस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना है, उस तरीके से पेशेंट को ट्रीट नहीं करना है.
हमें ये करना है, ये नहीं करना है, सारे क्राइटेरियाज एकदम सेट किए हुए हैं गवर्नमेंट के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के गाइडलाइंस हैं. बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग इन सच डाइवर्स वे, गाइडलाइंस सारे कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को. सो दैट इज़ वॉट हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन द अर्लियर डेज एज वेल. ठीक है. एंड देन आई विल गो टू द अदर पॉइंट इज ये ARDS पैंडेग्रिम इसमें बिल्कुल काम नहीं कर रहा है. वॉट वी आर सीइंग इज वी आर सीइंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स, टाइप H एंड टाइप L. टाइप H पेशेंट्स जो हैं they are around 40 to 45% of the cases we are getting type H. Type H is regular ARDS का जो presentation होता है वो, उसमें आपको क्या मिलेगा, stiff and heavy lungs मिलेंगे. टाइप L में क्या हो रहा है, thin and compliant lungs मिल रहे हैं आपको. So it is not a typical ARDS in this case. तो इसलिए क्या हो रहा है कि आप you cannot use a similar protocol for everyone, right? You cannot use a similar protocol for everyone who is presenting with type L. Type H you can use the similar protocol, but then again what happens is if you cannot figure out the patient is in type H or type L, you are probably putting 50% or more than 50% of the patients into a disaster management. ARDS cannot be same for everyone in this case. Type H, type L. Maharashtra में mostly we are seeing type H initially. Now we have started seeing type L as well. बट इन ऑल द अदर प्लेसेस मोस्टली US, यूरोप में हम देख रहे हैं टाइप L ज़्यादा दिख रहा है लोगों को. यूजुअली ARDS में व्हाट वी डू इज़ वी कीप द लेवल ऑफ ऑक्सीजन हाई, प्रेशर्स वी प्रेफर कीपिंग इट लो सो दैट द पेशेंट इज़ एबल टू सस्टेन इट. हम प्रेशर्स ऑक्सीजन हाई रखते हैं, प्रेशर्स लो रखते हैं, एंड देन ग्रेजुअली वी रिड्यूस द ऑक्सीजन लेवल. एंड प्रेशर्स को अगर ज़्यादा लो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो हम बढ़ाएंगे. बट व्हेन वी रिड्यूस, हम इनिशियली वी विल स्टार्ट रिड्यूसिंग विद द ऑक्सीजन लेवल एंड देन गो विद द पीक प्रेशर्स. जो प्रेशर्स है हम वो कम करेंगे. इसमें जो टाइप L पेशेंट्स है यू हैव टू डू कम्प्लीटली ऑपोजिट. यू हैव टू कीप द ऑक्सीजन लेवल वेरी हाई, एंड जो हमारा प्रेशर्स है इनिशियली जो हम उसको पहले हम ऑक्सीजन को कम करते हैं एंड फिर प्रेशर्स कम करते हैं. इसमें हमको प्रेशर्स को इनिशियली ही कम रखना है एंड हमको ऑक्सीजन कंटिन्यूसली आगे ज़्यादा देते रहना है. तो इसमें यू हैव टू बी जेंटल विथ हाई प्रेशर्स एंड यू हैव टू ऐड लो प्रेशर्स टू द पेशेंट. तो हमको ये करते करते भी वी हैव टू कीप रिमेंबरिंग एंड कीप प्रेइंग कि ये पेशेंट बाहर आ जाए, ही इज़ टाइप L एंड नॉट टाइप H. एंड देन द अदर पार्ट इज़ डॉक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर स्टेइंग विद द हॉस्पिटल में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं. बहुत स्मॉल टॉक्स इज सेइंग समथिंग. ठीक है, तो वह वो भी हाँ, डॉक्टर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में. दे आर मोस्टली स्टेइंग विद द हॉस्पिटल. इनिशियली विद द इनिशियल डेज जब मुझे भी पता नहीं था कोविड के बारे में, वी डिडंट नो अबाउट ऑल द प्रिकॉशंस वी कैन टेक. इवन आई स्टेड विद द हॉस्पिटल एंड इवन आई वाज नॉट एट होम. एंड द अदर पार्ट वाज जब लॉकडाउन हुआ तो पुलिस वाज नॉट अलाउइंग मनी डॉक्टर्स टू ट्रैवल. इनिशियली ये भी था कि डॉक्टर्स स्प्रेड कर रहे हैं उस चीज़ को, सो वी मेड श्योर कि ऐसा ना हो. एंड जब वो सब सेटल हो गया देन आई स्टार्टेड स्टेइंग एट होम एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एट द हॉस्पिटल टू एंड फ्रो. उसमें ठीक है, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स बट विल कम बैक टू ऑल दीज थिंग्स. एंड हाँ, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था, व्हाट वी स्टार्ट, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु आर आस्किंग अस क्वेश्चंस अबाउट दिस थिंग. इनिशियली हमने जब स्टार्ट किया था, व्हाट वी हैड स्टार्टेड वाज वी वर स्टार्टिंग विथ azithromycin 500 OD. This is for all the medicos who are on this. And then we were starting with oseltamivir, which we use in H1N1 75 milligram BD, and we used to use HCQ. What we did was initially we used to take a ECG. QTC level जो है उसका prolongation, if it is less than 400 or 450 we used to use HCQ. Otherwise we didn't use HCQ. HCQ अगर आप दे रहे हो पेशेंट को, ECG monitoring regularly करना है, it can cause cardiac toxicity, right? You have to be very careful about it. And then all the other things symptomatically आपको manage करना है. People I have heard outside giving it for 20 days, 21 days. I gave it personally for 5 days to all my patients. 5 दिन के बाद मैंने वो सब बंद कर दिया, and we shifted to vitamin B, vitamin C and all those other supportive things which help people in recovering. After second week, initially guidelines ये थे कि you have to send a swab when the patient is afebrile for 5 days. 5 दिनों से कोई फीवर नहीं आया है तब आपको उसको फिर से रिपीट स्वैब भेजना है. नेगेटिव है तो आपको डिस्चार्ज करना है. I had posted out a video and a photo of the first patient we had discharged. उस टाइम पे वो गाइडलाइंस थे. अब जो न्यू गाइडलाइंस है, यू एडमिट द पेशेंट फॉर 7 days,
you give him all the treatment, and then you discharge him and he'll be at quarantine in home. Why is this being done? Because initially जो पीरियड होता है उसमें अगेन एज आई टोल्ड अर्लियर वायरल शेडिंग बहुत होती है, एंड आपको जो फियर रहता है वो भी रहता है. यू नीड सम मेडिकल मैनेजमेंट. एक बार आप एडमिट हो गए, वायरल शेडिंग आपका कम हो गया, फियर आपका कम हो गया, मेडिकल मैनेजमेंट आपको मिल गया है, घर पे भी क्या मेडिसिन लेने आपको पता है, देन यू कैन गो होम एंड स्टे इन द क्वारंटीन. दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द लोड इन एट द हेल्थ केयर सिस्टम. जो पेशेंट्स इतने आ रहे हैं उसको भी मैनेज करने में थोड़ा सा ईजी रहता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्चार्ज हो गए हो, आप घर पे जाके सबके साथ घूम रहे हो, बाहर जा रहे हो. नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है. सो आफ्टर दिस थिंग someone had asked me about this Flavipivir, Dr. Soni Gautam, right? So initially what we were using is for mild to for asymptomatic to mild cases we were using Oseltamivir. Now what we have started using is mild to moderate we are using Flavipivir, and moderate to severe जो है we have Remdesivir available in India. मुंबई से हम लोग मंगा रहे हैं, but इतना ज़रूरत नहीं पड़ा है आज तक. वी हैड ओनली अ फ्यू पेशेंट्स हु नीडेड देम. फ्लैविपिविर से एंड ओसेल्टामिविर से काम चल जा रहा है. सो एज पोर्ट्रेड इन द मीडिया, जो आप न्यूज़ में देख रहे हो कि सिर्फ यही ड्रग्स मिलेंगे, इसके अलावा आपको और कोई ट्रीटमेंट नहीं है. एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड आदर्श, ही इज़ फ्रॉम मुंबई. उसके किसी फ्रेंड को हो गया था, तो ही वॉज लाइक रेमडेसिविर हमें इंडिया में अवेलेबल करा के दे दो. और लाइक अगर माइल्ड केस है तो इससे काम चल जाएगा, बट दे वर वेरी दिस थिंग हाउ डू यू से वेरी कंसर्न. उन्होंने फिर कहीं से अरेंज कराया. दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. बट अगर आपका सिवियरिटी माइल्ड टू मॉडरेट है, यू कैन यूज़ ऑल दीज माइल्ड ड्रग्स एंड उससे बच सकते हो. उसका बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है. यू हैव टू जस्ट मैनेज ऑल द सिम्टम्स. विद इन 7 to 8 days पेशेंट इज comfortable and ready for discharge. So what is the lifespan of virus? Surfaces like plastic, clothes, human. ठीक है. लाइफ स्पैन ऑफ वायरस हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं. जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि बाहर सन में आप जाओगे वायरस जल्दी मर जाता है, एंड घर में ज़्यादा देर रहता है, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा देर रहता है, राइट? तो इसमें थोड़ा सा सच है, बाकी का झूठ है. उसको हम किस तरीके से बोलेंगे? बिकॉज बाहर जब वायरस रहेगा बाहर के किसी सर्फेस पे, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज आपके सन के पड़ रहे हैं, दैट helps in reducing the lifespan, but that is not a natural and disinfectant. आप अगर घर पे हो डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हो, या फिर कहीं और हो. डोर नॉब्स हैं, एलिवेटर बटन्स हैं, रेलिंग्स हैं, उन सबको क्लियरली डिसइंफेक्ट करना है आपको. एंड 8 to 9 hours आई थिंक इज़ अ गुड प्रॉपर गैप. फ्यूमिगेशन काफ़ी लोग करवा रहे हैं आजकल. फ्यूमिगेशन की घर पे आपको ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर श्योर कि कोई इन्फेक्टेड या फिर सस्पेक्टेड आया है तो आप फ्यूमिगेशन करा सकते हो, अदरवाइज नॉट नीडेड एट ऑल. So where were we? Dr. Hemant Verma. Okay, right. Which medicine do we take if we have cold, flu? Not sure whether it is COVID or not. If you have just a regular cold and flu, आप एंटीहिस्टामिनिक ले सकते हो. कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर फीवर है तो एक नॉर्मल पैरासीटामॉल ले सकते हो. पैरासीटामॉल भी ज़्यादा नहीं लेना है, दिन में 3 या 4, उससे ज़्यादा. अगर बहुत ज़्यादा फीवर है तो 4 कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है. 4 से ज़्यादा पैरासीटामॉल दिन में आपने लेना ही नहीं है. उसका लिवर टॉक्सिसिटी होता है, आपको नहीं लेना है वो. विच मेडिसिन डू वी टेक इफ़ यू हैव कोल्ड? ओके, सेम क्वेश्चन. देन खैफ अख्तर का क्वेश्चन है, वो भी हो गया है. ओके, रिचा कन्वर इज आस्किंग, इज ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम स्विगी एंड जोमेटो सेफ? ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम सच सर्विसेज इज सेफ if practice basic hygiene, but I would avoid taking such steps. And अगर आप घर पे बना सकते हो तो it is better and safer. It is safe anyways. Hemant Kumar is asking how much is N95 durable? As I said earlier, N95 आप usually what we technically speaking 6 to 8 hours उसकी efficacy रहेगी as if you are in a direct contact with a patient. But अगर आप direct contact में नहीं हो, आप बस protection के लिए यूज़ कर रहे हो, तो what you can do is वो 4 bags वाला सिस्टम जो है हमारा फॉर 20 days. यू कैन कीप 4 मास्क फॉर 20 days. डॉक्टर सोनी का क्वेश्चन हो गया है. दिव्या बंसल इज आस्किंग, ओके, वो भी क्वेश्चन हो गया है. हाउ वॉज इट बॉर्न? इसके ऊपर अभी कोई कुछ नहीं बोल सकता. कोरोना वायरस इज़ अ नेचुरली अकरिंग वायरस. इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने लैब में बनाया है. कैन बी पॉसिबली डन प्रोबेबली, बट नॉट श्योर. उसका अभी तक हमारे पास कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है.
कोमल खैदन इज आस्किंग कैन यू प्लीज टेल अबाउट बेनिफिट ऑफ आरोग्य सेतु ऐप. वो भी हमारा डिस्कस हो चुका है, आरोग्य सेतु ऐप भी हमारा डिस्कस हो चुका है. विकास इज आस्किंग आर हेल्थ केयर वर्कर्स एट रिस्क फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस. ऑफकोर्स मेरे डिपार्टमेंट से, मेरे हॉस्पिटल से मोर देन 40 पीपल व इन्फेक्टेड इनिशियली. जब आपने न्यूज़ देखा होगा तो माई हॉस्पिटल वॉज इन वन ऑफ दोज हॉस्पिटल्स जहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स काफ़ी सारे इन्फेक्टेड हुए थे. Many of my patients, my colleague Dr. Kiran, Dr. Purnima, very good doctors, had been infected earlier. Dr. Purnima, तो in fact she got infected not when she was treating her COVID patients. उसका COVID patients का ड्यूटी खत्म हो गया था. She finished her quarantine period and then she was at home. She got infected from some other sources. We are not sure where, but हो सकता है कि कहीं और से infection मिला हो, or maybe it was a late symptom. Komal Khaitan, what is initial symptoms of COVID? Initial symptoms are basically like any other viral infection, but unless and until you have flu, severe diarrhea, vomiting, you can stay at home, stay isolated. Traveling by air is safe or not? That is a fear which I have right now, traveling by air. I love traveling a lot, but traveling by air is not safe and not recommended at all right now, because it is a closed chamber with air flow system, right? एयर फ्लो से आपका क्या हो रहा है, एज आई सेड अर्लियर, सेंट्रल एसी आपको बिल्कुल भी बंद रखना है. किसी भी बिल्डिंग में आप सेंट्रल एसी अगर हो, बंद रखना है वहाँ पर, उसको यूज़ नहीं करना है. यू कैन यूज़ अ नॉर्मल फैन इन अ रूम. आपको ऐसा कोई भी सिस्टम यूज़ नहीं करना है यहाँ पर. यहाँ से यहाँ की एयर वहाँ पर जा रही है, वहाँ की एयर यहाँ पर आ रही हो. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग नेगेटिव प्रेशर्स इन द हॉस्पिटल. वो इसलिए है ताकि आपका जो एयर, हाउ डू यू से, द वायरस विच स्प्रेड्स फ्रॉम योर माउथ. जो पेशेंट भी अगर एडमिटेड है, वो रूम के अंदर है, वो कंटिन्यूस मास्क नहीं पहनता है. हम उसको कितना भी बोल लें, आई हैव सीन इट माई सेल्फ फर्स्ट हैंड. पेशेंट है, आप उसको चाहे जितना बोलो, मास्क को निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि हाइपोक्सिया इज ऑल्सो अ रीज़न. उसकी वजह से और ब्रेथलेसनेस होती है, पेशेंट बीच में मास्क निकालते हैं, एंड दैट वायरस कैन स्प्रेड टू द अदर रूम्स. जहाँ पर कोई सस्पेक्टेड है या फिर कोई नेगेटिव पेशेंट है, वो जा सकता है सेंट्रल एसी से. सेम थिंग लिफ्ट्स एंड ऑल में, एयरप्लेन्स में, वो रोटेट होना है, वो एयर इधर से उधर जानी है, हवा, रिस्क रहेगा, आपको नहीं करना है. वेद प्रकाश इज आस्किंग व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग 1.5 lakh टेस्टिंग डेली फॉर दिस डिजीज. इज द स्पीड, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक? ठीक है, एज आई सेड अर्लियर, टेस्टिंग हमको हर किसी की करनी ज़रूरी नहीं है. अगर माइल्ड सिम्टम्स है, हमें पता है कि अगर, देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोविड पॉजिटिव आता भी है या फिर नहीं भी आता है, ट्रीटमेंट आपको सिम्टोमेटिक ही करना है उसका, राइट? तो आप फालतू में पेशेंट को बाहर ले जाओगे, बाकी लोगों को भी रिस्क पे डालोगे, पेशेंट को भी रिस्क पे डालोगे. सेम थिंग व्हाट हैपेंड विद स्वाइन फ्लू, वो हमें नहीं करना है. जो सीवियर केसेस है उसमें ऑब्वियसली टेस्टिंग करनी है, बट माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में अवॉइडिंग टेस्टिंग इज अ बेटर ऑप्शन. कोमल इज आस्किंग व्हाट इज मेंट बाय लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन शोन इन ग्रीन कलर इन आरोग्य सेतु ऐप. ठीक है, लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज इफ़ यू आर एट होम और इफ़ यू आर इन अ प्लेस जहाँ पर कोई पेशेंट्स नहीं है, कोई नॉन पेशेंट नहीं है, किसी का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है. फॉर एग्जांपल कोई छोटा गांव है, अगर कोई छोटा विलेज है, वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है बाहर से, ह्यूमन टच नहीं है बाहर का, आप उस गांव को सील कर दो, उस विलेज को सील कर दो. इनसाइड योर लाइफ कैन बी नॉर्मल एज अर्लियर. वहाँ पर इट कैन बी अ ग्रीन जोन एंड आपको कोई रिस्क नहीं होगा. रिस्क आपको कब होगा? जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, यू डोंट हैव अ प्रॉपर ट्रेसिंग हिस्ट्री और अ प्रॉपर ट्रेसिंग मेथड ऑफ दैट पर्सन, सो देन यू आर एट रिस्क. हरिओम इज आस्किंग इज आरोग्य सेतु ऐप यूजफुल? Okay, we have already mentioned that thing. Ved Prakash is again asking also, there is no guarantee that one person can be tested, can't be positive, right? टेस्टिंग का जो है, there are different modes of testing. RT-PCR कर रहे हैं हम, दूसरे तरीके भी कर रहे हैं, but the sensitivity of all these cases, all these testings are very different. अगर हम नॉर्मली जो nasopharyngeal swab ले रहे हैं, nasopharyngeal swab is what you take a swab from the throat and you take a swab from the nose of the patient deep inside. इसमें क्या है, इसकी सेंसिटिविटी इज़ वेरी लो, अराउंड 60%. इट कैन बी अ फॉल्स नेगेटिव. हो सकता है कि आपको कोविड है और आपका स्वैब नेगेटिव आया है, तो फिर भी अगर आपका स्वैब नेगेटिव भी आया है, तब भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है बिकॉज ऑफ योर सिम्टम्स, राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज इंद्रजीत इज आस्किंग what do you think, what is the future of coronavirus? People relate this to Shastra and God stuff. Does this relate that exact 100 years ago Spanish flu, now corona? That is a coincidence. Every 100 years we have had something, some epidemic or pandemic, but it is nothing as like God stuff or some Shastra thing. It is purely a coincidence, what I believe from. Apurva, my sister is asking, heard a lot about when people get recovered from COVID and after returning from hospital, they get more infectious and disease which is not being said to them.
which you later is truth. You can have a lot of complications. हम जो दवाइयाँ दे रहे हैं उनसे भी complications हो सकते हैं. सी इंग्लिश मेडिसिन इज़ समथिंग जिसमें हर किसी का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, माइल्ड या मॉडरेट, या फिर किसी में शो नहीं करेगा. व्हेन यू सी दिस थिंग एमसेट इज़ एन ऑन्डेंसेट्रॉन टैबलेट, उसका साइड इफेक्ट विच इज़ गिवन फॉर वॉमिटिंग, उसका साइड इफेक्ट इज़ वॉमिटिंग, राइट. सो व्हाट हैपन्स नाउ डेज, आजकल जो पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं हॉस्पिटल में रख रहे हैं, एंड द सेकेंड डिस्चार्ज गाइडलाइन दैट वी हैव इज़, हम बिना पेशेंट को स्वैप किए हुए, बिना टेस्ट किए हुए हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, एंड ही गोज एट होम, ही लिव्स इन क्वारंटीन. उससे क्या हो रहा है, वी सेव ऑन आवर टेस्टिंग किट्स, राइट. द पेशेंट गोज होम, ही इज़ नॉट श्योर ही विल बी इन क्वारंटीन. एंड उसके अलावा जो है क्वेश्चन वॉज इन्फेक्शस, ठीक है, उतना ही करना है हमें. एंड घर से आने के बाद भी इन्फेक्शन, क्योंकि वो जो वायरल लोड है वो रहेगा पेशेंट के अंदर, इट कैन स्टिल फ्लेयर अप. यू कैन कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर और द हॉस्पिटल एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. बट दैट इज़ बीन डन इन जनरल केसेस बिकॉज हेल्थ केयर पे लोड कम होगा एंड आप भी जल्दी घर पे जा पाओगे. आपका कॉस्ट इश्यूज़ भी है, बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री जहाँ पर हर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है. जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है उसका कॉस्टिंग इनिशियल डेज में इट वॉज अराउंड 3 lakhs 4 lakhs, नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल मैन. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप देख ही रहे हो हालत क्या है. आई बीन वर्किंग विद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ, एंड हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स है. गुड लेसन हियर इज एवरीवन शुड बाय अ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर फ्यूचर. Praveen Kumar Yadav is asking, in case person gets infected with this virus, can precautions he or the family members need to take care. उस मेंबर को आपने आइसोलेट करना है. आस्क एवरी अदर पर्सन शुड ऑल्सो गेट टेस्टेड फॉर दिस थिंग. अगर माइल्ड केसेस है कुछ नहीं करना है, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हैप्पी. घर पे आप कुछ योगा देखो, मूवीज़ देखो. वी वर ऑल प्रेइंग बिफोर दिस थिंग कि हमें फैमिली के साथ टाइम नहीं मिलता है, हमें टाइम नहीं मिल रहा है. नाउ दैट यू हैव टाइम, एवरीवन इज फेड अप ऑफ इट. Dr. Anchal Gupta is happy. Kapil Chawla is asking, is drinking hot water twice a day will help you from getting rid of the loading virus in body? नहीं, drinking hot water is healthy but it has nothing to do with the virus. वो जो आप देख रहे हो ऑयलिंग वाला जो है, that can to some extent help because that will not allow the virus to go in. वो आपको बचा सकता है, बट अदर देन दैट ड्रिंकिंग हॉट वाटर इज गुड फॉर योर हेल्थ बेसिकली, बट नॉट फॉर द वायरस. रिया अगेन माई सिस्टर इज वेरी इन्फॉर्मेटिव. अनबेश बोडा इज सेइंग ओके, स्मॉल टॉक्स इज ओके. ओके, रुक्मिनी इज आस्किंग, व्हाट डू यू थिंक ऑफ कोरोनिल टैबलेट्स? आई हैव नो आइडिया. देयर इज नो स्टडी बीइंग डन ऑन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स. मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आर नेफ्रोटॉक्सिक इन इंडिया. सो बिफोर टेकिंग दैट डू कंसिडर दैट किडनी पेशेंट्स जो है उनको जितना कम ले सकें उतना अच्छा है. प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट. प्रिकॉशन लो, क्योर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. रिया इज आस्किंग, हाउ लॉन्ग डज इट टेक वायरस टू लिव ऑन एनी मटेरियल? हमारा आंसर हो चुका है. कोमल इज अगेन आस्किंग, इज यूजिंग कॉटन क्लोथ मास्क बेनिफिशियल? समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. अगर आपके पास N95 नहीं है, N99 नहीं है, 3 ply सर्जिकल मास्क नहीं है, कॉटन मास्क इज स्टिल बेटर बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर योर सेफ्टी, इट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर पीपल. आपके सोसाइटी में या आपके आसपास जो बाकी लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा है, जो छोटे बच्चे हैं, वो सेफ रहेंगे. अभिलाष ओके, रिया इज आस्किंग, व्हाट एक्चुअली हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी? बूस्टिंग इम्यूनिटी में व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक फूड्स विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. विटामिन सी आप ले सकते हैं, विटामिन बी आपको रेगुलरली लेना है. सिट्रिक फूड्स आर वेरी गुड इन दिस केस. सिट्रिक फूड्स आपको लेना है रेगुलरली. अभिलाष इज आस्किंग, पॉजिटिव पेशेंट वंस क्योर्ड री इन्फेक्शन का चांस है? यूजुअली नॉट, बट इसमें हम सुन रहे हैं. आई हैव नॉट सीन एनी री इन्फेक्टेड केसेस पर्सनली, बट यूजुअली वायरल केसेस में अगर आप अभी इन्फेक्ट हुए हो, सेकेंडरी इन्फेक्शन री इन्फेक्शन तुरंत पॉसिबल नहीं है. मे बी इफ इट इज़ अ न्यू स्ट्रेन. इसमें भी काफ़ी सारे स्ट्रेन्स होते हैं. कोरोना वायरस में बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं. इफ़ इट इज़ अ न्यू स्ट्रेन इट इज़ पॉसिबल. सेम स्ट्रेन से टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल अप टू वॉट आई थिंक. Then again Anchal is asking, any patient till now have been treated with plasma therapy? Yes, plasma therapy has been used. It has been good. देखते हैं. My चाची here is asking, is homeopathy medicine useful for COVID? होम्योपैथी मेडिसिन एक हमने बीच में सुना था, काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टर आया था. आई एम नॉट श्योर, आई हैव नॉट रेड एनीथिंग. उसके ऊपर कोई स्टडीज़ नहीं रीड किए हैं मैंने, पर
ले लो, उससे कोई फ़र्क, उससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। एंड अगर आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो आप उसके लिए मेडिसिन क्यों ले रहे हो? आप नॉर्मल जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, फूड्स हैं, विटामिन सी रिच मटेरियल है, विटामिन बी रिच है, अब वो सब ले सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। टेस्ट भी मिलेगा और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। रितु इज़ हाई, थैंक्स फॉर योर टिप्स। ओके, थैंक यू रितु। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन एल्स हैज़ एनी अदर क्वेश्चन? Sonal is asking, should people who suffer from pollen allergy isolate if they develop typical hay fever symptoms? नहीं, if you know it is a typical allergy with pollen and you are allergic to pollen तो कोई डरने वाली बात नहीं है। but if you think you have been infected, आप कहीं बाहर गए हो, किसी से मिले हो, या फिर कोई और तरीका हो सकता है इन्फेक्शन का, then you should probably isolate yourself. Komal is asking, my friend has caught cold and my Arogya Setu app is showing low risk of infection. Should she be worried? As I said, cold, fever ये नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड हो। अगर ये अभी जो मानसून का सीज़न आ रहा है उसमें काफ़ी लोगों को फ्लू होगा, और आजकल लोग घर पे रह रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, लोग काफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, उससे हो सकता है। इफ़ यू आर श्योर कि कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है, आप घर पे रहो, इट विल बी ओके। एनीवन एल्स हैज़ एनी अदर क्वेश्चन? या फिर कोई टॉपिक अगर छूट गया हो, आपको याद आ रहा हो, तो आप वो भी पूछ सकते हो। आई विल ऑल्सो गो थ्रू माई पॉइंट्स इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग। पॉइंट्स विच आई हैड रिटन डाउन वो सारे मैंने बोल दिए हैं ऑलमोस्ट। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वी विल बी ओपन फॉर क्वेश्चंस। ऋषिकेश इज आस्किंग, इज दिस मिथ और इज इट ट्रू दैट डज ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर हेल्प फ्लश आउट कोविड-19? ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 50 लीटर पियोगे। इट विल नॉट फ्लश आउट दी कोविड-19 एज आई सेड अर्लियर, but it will keep you hydrated. Keeping hydrated in flu conditions is always recommended. Komal is thank you. You're welcome, Komal. Hitesh is asking, Ramdev said he finds corona medicine. Is it true? I am not sure of any Ayurvedic medicine as I am an allopathic doctor. उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा. There is no research work provided as of now. Anyone else? किसी और का कोई और क्वेश्चन हो? Importance of insurance, should we take a lesson now? Obviously it is better you buy an insurance. Two reasons: tax benefit भी मिलेगा, and if anything God forbid happens, your family will not be worried about the financial part, they will only be worried about the medical part. They will be able to take your care better. अगर कोई financial doubts नहीं है, उनको कोई financial thoughts नहीं आ रहे हैं, it is always recommended to buy an insurance. Is taking steam helpful? Taking steam is helpful in cases, but कोविड में इसका कोई लेना देना नहीं है। What is recovery time? As I said, पहले हम लोग पेशेंट्स को 2 हफ्तों के लिए we used to keep patients admitted for 2 weeks. टेस्ट द पेशेंट once he is afebrile, जब फीवर अगर 5 दिनों से नहीं आ रहा है तो हम टेस्ट करते थे, नेगेटिव आने के बाद हम डिस्चार्ज करते थे। न्यू गाइडलाइन से 1 हफ्ता आपको एडमिट रहना है, ट्रीटमेंट लेना है, उसके बाद आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, आपको घर जाना है और घर पे आप वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। आपको क्वारंटीन रहना है 2 वीक के लिए फिर भी, बिकॉज इट इज़ रिकमेंडेड सो दैट यू डोंट इन्फेक्ट एनी अदर पीपल। एंड इनिशियली डेज में भी हम